آپ سن رہے ہیں پروگرام نیلم کنارے RJ ماریا ہارون کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ سنا FM 89.4 AJ کے نیٹ ورک تو پہاڑی پروگرام نیلم کنارے دے نال میں ماریا ہارون۔ جی کیسے ہو تسی سارے؟ میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہو سن، اپنی زندگی خوبصورت طریقے نال سونے طریقے نال گزار رہے ہو سن۔ اساں دی دعا تسی خوش باش رہو، جیندے رہو، ہستے مسکراندے رہو، آمین۔ تبھی اور دیکھ بھی رہے اس دے نال 89.4 دی فریکوینسی تبھی موجود ہیں، سارے کو خوش آمدید آتے ہیں اور اسندہ اور تسندہ ساتھ ہوندہ ہے ہر پیر اور منگل کو صبح 11 تو گھنٹہ تیاری 1 بجے تک، اور اس سے جیسی مجھ ساریاں چیزیں تک گل بات کرتے ہیں اور پروگرام تے شروع وچی تمام لوگوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ جی جناب، تسی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہو بذریعہ میسیجز، کالز اور فیس بک کمنٹس۔ میسیجز کرنے واسطے رائٹ میسیج آپشن میں چلو، ایجوکیٹ ٹائپ سپیس دیو، اپنا نام لکھو، پیغام لکھو اور اس کو سینڈ کرو 8881 یعنی کہ 888 تا بھیج سکتے ہو، اور اس کے نال 0582253279 یعنی کہ 532379 تک کالز کر سکتے ہو، اور تساں دی کال جڑی کہ نا لائیو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی جناب، فیس بک تک اس طرح آسان شامل ہو سکتے ہو۔ فیس بک واسطے facebook.com/suno یا سمپل سنا FM کشمیر ٹائپ کرو اور آسان نال پروگرام میں شامل ہو بذریعہ کمنٹس، اور تساندے کمنٹس بھی شامل کرتے ہیں۔ کون کون آسان موجود ہیں؟ محمد شکیل کیانی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، جب کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ عمران احمد خان نیازی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب۔ السلام علیکم، میری طرف سے تمام اہل اسلام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، سرکار کی آمد مرحبا۔ جی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے دا، اور شکیل کیانی اسن دے ریگولر لسنر نسنا شامل ہونے۔ اچھا جی، اج دا اسن جڑا ٹاپک ہے موسم دی مناسبت تو میں سلیکٹ کیتا سا کہ اسی غذائی تبدیلیاں دے بارے وچ گل بات کر سن کہ جیاں موسم بدلنا شروع ہو جلدا ہے تا اے جی کیڑی غذائی تبدیلیاں ہیں اپنی زندگی وچ اس کو شامل کر کے اسی اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، خوبصورت جا موسم انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا جیاں بڑا حال ہے کہ نوزی بہ رہی ہے، نچھاں آ رہی ہیں، گلا خراب ہے، بخار ہے، تو ایسے میں ہم کس طرح سے موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں ایز کمپیئرڈ اگر ہم اچھی غذا لیں، ایسی صحت مند غذا لیں جو ہمارا مدافعتی نظام کو بھی بہتر کرے اور ہم موسم کو بھی انجوائے کر سکیں۔ اچھا، ایک اور گل بھی ہوندی ہے نا کہ گھراں وچ اگر ایک بندہ بیمار ہو جلدے نا تو اس کے بعد سارے گھر والے جڑے کہ نا بیمار ہو جلدے ہیں، اور زیادہ جڑیاں بیماریاں ہوندیاں نا سکول تو بھی زیادہ آندی، مطلب ایسی جگہ جتھا گیدرنگ ہے، سکول کالج، اور بچے زیادہ متاثر ہوندے ہیں کیونکہ بچے اندر امیونٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہوندی، تو رنگ برنگے ہر طرح دے بچے جڑے کہ نا سکول وچ ہوندے ہیں، تو پھر وہ نویاں نئی قسم دیاں جڑیاں بیماریاں نا سکولوں آندے ہیں۔ تو اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو گھراں وچ جتنے بندے بھی ہیں نا وہ بھی انہاں دی پروبیبلٹی بڑھ جلدی ہے کہ انہاں دی بھی بیمار ہونے دے چانسز بڑھ جلدے ہیں۔ اچھا جی، بنارس گکھر راجپوت، السلام علیکم آپ ہی، میری طرف سے آپ کو
اور تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جی بہت شکریہ, بہت مبارک ہو تمام لوگوں کو. اچھا یہاں پر جو ہے نا میرا جو یہ پروگرام ہے وہ اتنا بائسڈ نہیں ہے, اس میں ایسا نہیں. اچھا کچھ لوگ ہیں سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میں اس کو بحث نہیں کر رہی, میں سمپل ایک کلیریفائی کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی عید میلاد النبی منانا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے. تو میں ان دونوں کو نہیں سپورٹ کری. مجھے جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ میں آپ کو جواب دیتی جا رہی ہوں. تو میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں, میں بالکل نیوٹرل ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بالکل بھی جج نہیں کریں گے کہ میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں یا ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. مجھے جیسے جیسے میسیجز آئیں گے, کمنٹس آئیں گے, جو فیڈ بیک آئے گا اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو جواب دیتی چلوں گی, ٹھیک ہے. چونکہ اردو پروگرام تو نہیں ہے, پہاڑی ہے, تو اپنی لوکل لینگویج پہ دوبارہ سے سوئچ کرتے ہیں. اچھا جی, غذائی انتخابات کتنا ضروری ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ دوئی یہ گل ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سردیاں اساں دی غذا وہی ہوندی ہے لیکن اس کا ٹیمپریچر یا تھوڑا کوکنگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور گرمیاں بھی تھوڑا جہا مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی ٹھنڈے مشروبات ہیں, ٹھنڈا پانی ہے اور برف سے بنی آئس کریم, سلش اور پتہ نہیں کہ وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن سردیاں جیاں آندی ہیں تو انہاں ساریاں چیزاں دا کانسیپٹ ختم ہو چلتا ہے. اس کی جگہ سوپ ہے, کافی ہے, چائے ہے, قہوہ ہے, گرم پانی ہے, نیم گرم پانی ہے, اور یخنی, اس طرح دیاں چیزاں جڑیاں کہ نا اپنی جا بنا چھوڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس وچ تھوڑی جی غذائی تبدیلی دی ضرورت ہوندی ہے, اور اے جی غذاواں کھانے دی ضرورت ہوندی ہے جڑا اساں دی مدافعتی نظام کو مزید بہتر کرن, اور اساں دی ایک میکانزم ہے امیونٹی جڑی کہ نا اس دی وجہ تو اساں دی اے جی امیونٹی سٹرونگ ہوئے کہ جڑے وائرس آندے ہیں مختلف طرح دے, نزلہ زکام بخار یا کسی دوہے بندے تو کانٹیکٹ تو بھی اساں کو اس طرح دے نال مسئلہ ہو جلتا ہے. تو اس تو اساں دی باڈی اتنی سٹرونگ ہو جلدی ہے نا, تو وہ جڑے وائرسز ہیں اساں ہوتا اٹیک نہیں کر سکتے. تو اس واسطے کچھ جی غذائی انتخابات ہونے چاہیے جس کی وجہ تو اسی سٹرونگ ہو چلا, ٹھیک ہے. اور سارے تو پہلے جڑا ہے نا ناشتہ اس ہوتا فوکس کرنا ہے, ٹھنڈا پانی اوائڈ کرنا ہے, ٹھنڈا پانی کا استعمال نہیں کرنا, اور ننگے پیر نہیں چلنا. اس تو علاوہ مطلب ٹھنڈا پانی دا استعمال جڑا کہ نا گلا خراب کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ کھٹی اشیاء دا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس تو علاوہ فش کا استعمال کر سکتے ہو, یخنی ہے, یا پھر قہوے کا استعمال لازمی کرو شام دے ٹائم یا راتی سہنے ویلے. اور اس کی وجہ تو بھی کافی اندر امیونٹی سٹرونگ ہو جلدی ہے, اینٹی آکسیڈنٹس اس وچ موجود ہوتے ہیں جڑے اساں کو سٹرونگ بناندے ہیں. اس تو علاوہ زکام بخار وچ جیاں میڈیسنز دوائیاں دا استعمال اسی کر رہے ہوندے ہیں, تو اس دا استعمال بھی اساں کو تھوڑا جہا استعمال دے نال نال جڑا کہ نا سبزیاں اور پھل دا استعمال بھی کرنا چاہیے, تاکہ اسی تھوڑا جہا نیچرل چیزاں قدرتی چیزاں کھاواں تا اس تو کافی سٹرونگ ہو سکتے ہیں. اچھا سردیاں وچ بھی اساں کول آپشن بہت زیادہ ہوندے ہیں گرمیاں دی طرح سبزیاں ہیں اور پھل ہیں. اس تو علاوہ خشک میوہ جات بھی کافی ہوندے ہیں جس کی وجہ تو اسی اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور ہیلدی سٹائل وچ اساں سے بڑا اہم ہوتا ہے. اچھا ایک انڈے دے بارے میں ایک ریسرچ پڑھی ایسی جڑی میرے ذہن تو بالکل سلپ ہو گئی ہے کہ 2 ابلے دے انڈے اگر تسی صبح کھاندے ہو تو اس کا افیکٹ تسے 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے آئی گیس میں بھول گئی ہاں, وہ ہوتا ہے کہ تسی 2 انڈے بھی اگر کھاندے ہو صبح ناشتے وچ ابلے دے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ تساں دی جسم دے حرارت کو متوازن رکھنے وچ اہم کردار ادا کرتا ہے. اس تو علاوہ فش کا استعمال بھی اساں تے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس وچ بھی کافی حد تک اجزاء پائے جاندے ہیں جڑے اساں تے بڑا ضروری ہیں. جے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وہ اساں تے بہت ضروری ہیں. اسی وائٹامن ڈی دی کمی واسطے گاڈ لیور آئل فش ٹائپ کے کچھ کیپسولز کہندے ہیں جڑے نیچرلی اس فش وچ موجود ہوندے ہیں اور اسی وچوں ہی ایکسٹریکٹ ہوندے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اسی وہ وائٹامن ڈی دی کمی واسطے وہ کیپسول کا استعمال کرنا یا پھر ہسی ڈائریکٹ فش کا استعمال کر کے اپنے آپ کو فٹ اینڈ فائن کر سکتے ہیں.
अच्छा जी, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस, कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स। किस तरह दे नाल शामिल हो सकते हो? मैसेज करने वास्ते राइट मैसेज ऑप्शन में चुल सो जगह टाइप स्पेस दे के अपना नाम लिखो, पैगाम लिखो और उसको सेंड करो 8881 यानी कि 8881। कॉल से की जा सकती हैं 0582253239 532379। एहसन अवान माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। ताहिर अहमद बट वेल डन। इस फोरम से आप अवाम नास को बताएं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल का इस्तेमाल ज़रूरी है। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ा अच्छा कमेंट किया। और डाइटिशियन के साथ मैं इन कांटेक्ट हूँ, वो जब मुझे टाइम देंगे तो यकीनन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे बदलते मौसम में जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो कितना ज़रूरी है और कैसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करके हम अपने आप को फिट एंड फाइन कर सकते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मुझसे सही बोला नहीं जा रहा। अच्छा जी, आपकी आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुई, लगता है अभी तक आपकी सेहत ठीक नहीं हुई। सो सैड। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तबीयत ठीक नहीं हुई, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बाकी एहतियात हो रही है, लेकिन कोई जितना टॉक्सिक किस्म का जो वायरस आ जाता है ना तो फिर वो टाइम लेता है जाते जाते। शकील क्यानी है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम आपको बीमार नहीं देख सकते। नहीं जी भाई, एक नेचुरल एलिमेंट है, आप किसी को भी बीमार नहीं देख सकते। और अच्छा, मुझे एक बात याद है कि सॉरी वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, ताहिर अहमद बट नौज़ायदा बच्चे के लिए माँ के दूध की अफादियत से आगाही ज़रूरी है। माँ पहले दूध बच्चे के कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है और बीमारियों के खिलाफ पहला हिफाजती टीका है। बिल्कुल ताहिर अहमद बट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो मदर फीड पे बच्चे होते हैं उनको बहुत कम, मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो उनको सर्दी और गर्मी, वैसे बच्चे तो होते बहुत नाजुक है ना, लेकिन उनकी वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा और इसके बारे में आगाही होनी चाहिए। मैं एक प्रोग्राम इसके ऊपर कर भी चुकी हूँ आई गेस 1 साल पहले, और इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। और हमारे काफ़ी प्लान्स हैं इस रेडियो से मुतालिक, हम अपने टॉपिक को भी मज़ीद अपग्रेड भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मौका मिलेगा। इशहाक डार, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और इस सब में ना हमें सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स, जिसमें हमें अंदाज़ा होता रहे कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह के प्रोग्राम सुनना चाहती है, किस टॉपिक पे वो चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, किस टॉपिक पे हम आगाही दें, ताकि उनको भी मालूमात वो हासिल कर सकें, ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके घर वालों के लिए भी बड़ा अहम हो। जो बात हो दिल में शेयर कर दिया करें, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नहीं जी, ऐसे अगर होता रहे ना, जो 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 बात दिल में है वो शेयर हो जाए ना, फिर इस दुनिया में फटे होना शुरू हो जाएंगे भाई। इस दुनिया में बड़े मसले होंगे, लड़ाइयाँ, झगड़े और जंगे और क्या से क्या। इसलिए कुछ बातें दिल में रहनी चाहिए, अपने पास रखें, थोड़ा सा उसको हजम करने की कोशिश करें। हर बात मुंह पे नहीं कहने की होती है। अच्छा अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है बदलते मौसम में सेहतमंदाना ग़िज़ाई तब्दीलियाँ क्या क्या हम ला सकते हैं। और इस बारे में आप ही बताएं कि आपकी ट्रेडिशन क्या है, आपके इलाके में, आपके ग्राम में कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है ना कि कहवे की जो पतीली है वो हर वक्त उधर चूल्हे पे होती है, जियां सी होंदा जुलदा है ना, ठीक है। कहवे की एक पतीली मखसूस होती है, ठीक है, उस विच पानी बाई जाओ और फिर जब नवे लोग आवन, बाहर दो मजमान आवन, आपू करा ले, बस ठीक है, गर्म होएदा तब उसको पींदे चलो, ठीक है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बाहरों तुसी जदों आंदे हो, इंसान ठंड लगी दी, चाह पानी शानी कुछ पीना चाहिए ताकि थोड़ा जिहा दर्जा हरारत इंसान दा थोड़ा नॉर्मलाइज हो, इंसान नहीं ते बीमार पै चलता है। तो ये कुछ लोगों का ट्रेंड है। अच्छा, एक और चीज़ है, वो एक बड़े रिश्तेदार दसिया सी कि असां दे रावलाकोट साइड ते एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। वो है कि असीं जिहड़ा सूजी दा हलवा बनाते हैं वो जरा गाढ़ा गाढ़ा जो होंदा है ना, ठीक है, लेकिन उस विच वो लोग पता है क्या करते हैं, पानी पाते हैं, सही
शीरा टाइप बनानी है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूप होता है या यखनी होती है, वो थोड़ा थिक मतलब पतला पतला होता है जिसको हम सिप लेके पीते हैं। वो उसमें गुड़ डाला जाता है, सूजी डाली जाती है और पता नहीं क्या डाला जाता है, बड़ा हेल्दी भी होता है और सर्दियों में भी हमें बचाता है। दैट्स वेरी नाइस। अगर आपके इलाके में कोई खास चीज इस्तेमाल होती है सर्दियों के मौसम में या बदलते मौसम में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, इशहाक डार, आई होप कि मैं आपका नाम सही से ले रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है, आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कुछ अपने इलाकों का भी होता है ना स्टाइल, अपने इलाकों का तरीका होता है, अपने इलाकों का एक ट्रेडिशन होता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, वो कहती थी कि हमारे इलाके में मकई जो आजकल छलियां होती हैं, जिसको पहाड़ी में सिल्टियां आखते हैं वो उसको उबालने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बड़कतियां रहंदियां तां जुल के वो गल जुलती हैं, ठीक है। उसको असी सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं और सारे कराले बैठे थे होंगे हैं और वो सिल्टियां नरम उसके दाने होंगे हैं, तो उसको बरूड़ के असी उस विच अखरोट मिला के खाते हैं। क्योंकि इतनी बाहर बर्फबारी हो रही होंगी है, बाहर जुलने का कोई तरीका ही नहीं होता। असी सारे भैन भरा जेरे कहना आराम दे नाल अगे कोल बैठे थे होंगे, उसको तब भी रहंदे होंगे। वो असन दा एक बड़ा फेवरेट स्नैक होंदा है कि असी वो उबली दियां छलियां और उसके नाल अखरोट मिक्स करके खाते हैं, तो वो हेल्दी भी होंगे और नाल असी पढ़ाई भी करते हैं। बड़ा अच्छा लग्या मुझे जब मैं कॉलेज में आसी, मेरी एक दोस्त आसी, मुझे याद नहीं वो किस इलाके दी आसी। कायनातान, ग्रेट शो, थैंक यू। फकीर यूसुफ जई, सुनो जी, सुनाए। शकील ज्ञानी, थैंक यू वेरी मच। आपके इलाके में भी ये रवाज है? हमारे इलाके में कोई ऐसा खास रिवाज तो नहीं है। जो एक नॉर्मली सर्दियों में होता है कि तुसी चाह पानी नहीं गर्म पानी, नीम गर्म पानी थर्मोस में रखते और उसके अलावा कावा हर वक्त मौजूद होता है कि जदों किसी को ज़रूरत होए, बच्चे पढ़ रहे होवन तो अपने थोड़ा सा फ्रेश होने वास्ते चाह पी सकते हैं। थोड़े जब मॉडर्न जे होंगे हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। और चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, यखनी, सूप, इस तरह होंगे मौजूद के जिस वेले भी इंसान को तलब होवे तो वो इस्तेमाल कर सकता है। बिलाल गुजर आखते हैं गोजरी में भी प्रोग्राम करें। गोजरी में मैं किस तरह कर सकती हूँ, मुझको मुश्किल नाल पहाड़ी आंदी है गोजरी जुबान नहीं आंदी है। गोजरी विच असन दी बड़ी खूबसूरत और बड़ी टैलेंटेड आरजे साजिदा रफीक करते हैं, बड़ी महारत है उन्हें को इस जुबान होता, वो बड़ी अच्छी प्रोग्राम करते हैं। बल्कि हर पीर और मंगल को दिहाड़ी तरे तो इनका 5 बजे तक उन्होंने प्रोग्राम होता है, तो यकीनन उस तो लुत्फानंदोज हो सकते हो। मोहम्मद सिद्दीक डार, अस्सलाम वालेकुम स्वीट लिसनर्स, FM 89.4 शो इज़ वेरी नाइस। बेशक नमाज ही साथी होती है दुनिया से कब्र तक और कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। मोहम्मद सिद्दीक डार फ्रॉम नीलम वैली, ठंडा पानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये बात तो आपने बहुत अच्छी की। नमाज की पाबंदी, नमाज को कायम करना बहुत ज़रूरी है और जो लोग करते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करते वो अभी जैसे एक अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लेंगे जिसमें नमाज बहुत ज़रूरी हो। और आजकल तो अलार्म, मोबाइल फ़ोन पे आप अलार्म लगा दें 5 मिनट हर 5 नमाजों का। अच्छा जी, मेरे कुछ एजे लिसनर्स भी हैं जिले आखते हैं कि तुसी उर्दू भी थोड़ा थोड़ा जिहा बोलो प्रोग्राम में। पहाड़ी तो बोलते ही हो, उर्दू भी बोलो तो उन्होंने वास्ते उर्दू का ऑप्शन जिहड़ा कहना वो असी थोड़ा जिहा बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, तौसीफ कबूल, नाइस शो, बहुत शुक्रिया तुसन दा तौसीफ। शकील यानी अखरोट तो थोड़े भेज दें प्लीज़। अखरोट हमारे गांव में भी नहीं होते भाई, हमें भी गांव से आते हैं, हमारे अपने कोई बूटे नहीं लगे हुए अखरोट के, हमें भी खरीदने पड़ते हैं। कायनात, बेस्ट आरजे इन टाउन, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच कायनात, सेम टू यू। मुनीर अहमद कुरैशी, माशाल्लाह प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू।
फकीर यूसुफ से खुशबुओं के जजीरों से सितारों की हदों तक। सुनो, अच्छा आप मुझे आई गेस कोई पोइट्री भेजना चाह रहे हैं जो आप टुकड़ों टुकड़ों में भेज रहे हैं। अगर आप उसको पूरा कंपाइल करके भेजें तो वो मैं उसको ज़रूर शामिल करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे तरीके से जो है ना पोइट्री को शामिल करूं, क्योंकि मैं इतनी पोइट्री में महारत हासिल नहीं है। अच्छा जी, हम अपने टॉपिक से बिल्कुल हट चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सर्दियों में बदलते मौसम में सेहतमंदाना ग़िज़ाई तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं। उसमें सारे तो पहले तो साने कोशिश ये करनी है कि पासा हुआ अंडा जो अपनी ज़बान में कहते हैं पासा हुआ अंडा, ठीक है, पासे दा अंडा तुसी लाजमी इस्तेमाल करो। उस विच काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंदे, सवाए विटामिन सी दे बाकी तमाम वाइटामिन उस विच मौजूद होंदे ने। तुसां आस्ते बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बच्चों आस्ते बहुत ज़रूरी है, नौजवान और बजुर्ग सारे अफराद आस्ते अंडे का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। उस तो अलावा चाह का इस्तेमाल तुसी कर सकते हो, ठीक है। उस तो अलावा संदी जी रिवायत है कश्मीरी चाह, नमकीन चाह जिसको आखते हैं, अगर लूण थोड़ा जहा घट उस विच बा के ना वो बड़ी हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। लोग उस विच इतना लूण पा देन करला जहर कर छोड़ते हैं, ठीक है। उसको एज कम्पेयर तुसी नमक थोड़ा जहा कम उस विच पाओ, बाकी उससे बड़ी खसूसियत है, ठीक है। और वो थोड़ी जी आखते हैं कि ठंडा उसका असर होता है कि अक्सर सिया विच नहीं पीनी चाहिए इतनी ज़्यादा, लेकिन जदों असी उस बादाम पिस्ता या खोपे का बूरा बांधते हैं ना, वो थोड़ा जहा बैलेंस हो जाता है। बड़ा अच्छा स्नैक है, स्नैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं राती, मतलब जिस वक्त भी तुसी इस्तेमाल करो। और मड़ी अगर सजेशन कहते हो तो तुसी उसको फिक्का पियो, मतलब चीनी भी ना पाओ, लूण भी ना पाओ। और कुछ टाइम विच तुसां दी आदत हो चुलसी, लेकिन वो बहुत हेल्दी है, ठीक है। उस विच थोड़ा ज़्यादा मिकदार में तुसी बादाम पिस्ता काजू और बाकी खोपे का बूरा पा सकते हो। बड़ा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है और उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और उसकी मज़े की गल है कि वो खराब भी नहीं होंगी। तुसी थर्मोस विच पा के रख के ना और फिर जदों तुसां को तलब होवे तुसी पी सकते हो, ठीक है। उस तो अलावा तुसी कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दालचीनी के बेशुमार फवायद हैं, ठीक है। उस तो अलावा उसको क्या कहते हैं सुंड, उससे भी काफ़ी फ़वाइद हैं। इलायची है, सब्ज़ पत्ती है, ठीक है। उस तो अलावा लेमन ग्रास है, उससे बड़े फ़वाइद हैं। उसके नाल सौंफ हैं और उस तो अलावा क्या कहते हैं उसको अजवाइन, उससे भी बड़े फ़वाइद हैं। यानी कि सारी मतलब मिला जुला के सारिया चीज़ां तुसी भड़का के ना उसको सही तरीके नाल और उसको थर्मोस विच रख के ना, ठीक है। उस तो जदों भी तलब होवे तुसी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा एक और टिप मैं तो सबको दसा कि सिया विच असीं उस विच चीनी के बजाय गुड़ अगर पा के ना वो हेल्दी भी हो सी और बच्चों वास्ते बहुत ज़रूरी है। अक्सर होंदा है कि बच्चे बीमार हो जुलदे हैं, जियां मौसम बदलता है तो बच्चे बीमार हो जुलदे हैं, ठीक है। ये जे घर में जानती हाँ पर्सनली कि जेडे रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को कावा यखनी इस तरह दी चीज़ां देंदियां ताकि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रोंग होवे और उसकी वजह तो वो बच्चे घट बीमार पैंदे हैं, ठीक है। वायरसेस आते रहंदे हैं, कदे जुकाम का वायरस आ गया है, कदे बुखार वाला आ गया है, कदे इयां होंदा है कि खांसी आ जुलती है, ठीक है। उस तो अलावा कभी कदे इं होंगे कि अजीब किस्म का जुकाम आ रहा है, ठीक है। वायरसेस आते रहते हैं, इन्हों का काम है आना जाना, ठीक है। लेकिन जदों इंसान स्ट्रोंग होंदा है ना अंदरों तो फिर वो वायरस नस जुलते हैं, वो समझ जुलते हैं कि जी इथा असां दी दाल ना गलसी, ठीक है। वो उसकी वजह यह है कि स्ट्रोंग तां होंदे हैं कि वो उन्हां दी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होंदी है, ठीक है। माल्टा खाना भी बड़ा ज़रूरी है। लेमन का इस्तेमाल विटामिन सी का एक ख़जाना है लेमन, ठीक है। लीमू का इस्तेमाल होने इतने मज़े के लीमू आ गए हैं, ठीक है। और उसको इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ी मिकदार विच, लेकिन किसी मुख्तलिफ किस्म के नाल तुसी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उस तो अलावा सर्दियों में एक खजाना असन दी जो अंडरग्राउंड जमीन विच जेडे असन दी सब्जियां उगदी हैं उन्हां विच मुझ ज़्यादा फ़ायदे मौजूद होंगे हैं, जियां गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ठीक है। उस तो अलावा अरवी है, ठीक है। इस विच बड़ी ग़िज़ाई ज़रूरियात असां आस्ते होंदियां न। कहनाता है ऑन अख्तिन एग्जैक्टली मोहम्मद सिद्दीक डार तमाम बिकॉज नान वालों ने नान मुस्लिम ये कश्मीर ज़ुबान में लिखा है। अच्छा पता नहीं, मुझे आपकी मैसेज की सॉरी समझ नहीं आई है। मोहब्बत के बारे में चंद अल्फाज बताएं। मोहब्बत के बारे में आपको यही बताऊंगी कि मोहब्बत ये किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना और यही मोहब्बत होती है। इज़्ज़त देना एक मोहब्बत से भी ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना, इज़्ज़त देना दूसरों को। और दूसरी ये बात है कि अपने साथ वालों को प्रमोट करें,
जो भी कोई काम कर रहा है, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको शौक है आगे बढ़ने का, ठीक है, उसको डॉक्टर अगर बनने का शौक है, तो आप उसको गाइडलाइन दें। उनको अगर नहीं पता कि किस तरह से, शौक तो होता है ना, कुछ लोगों को साइड एरियाज के ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेडिकल कॉलेज में एंट्री कैसे होती है, बाकी बहुत से ऐसे मामला, तो आप उनको राइट अच्छा रास्ता बता दें, ठीक है, उनको ये बता दें कि ये सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और इसका मतलब है कि आप दूसरों को मदद दे रहे हैं, ठीक है। ये प्यार ज़रूरी नहीं है कि बॉय एंड गर्ल के दरमियान हो, कई दफ़ा ऐसा होता है दूसरों को मदद आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी ये बात है कि मोहब्बत हर उस चीज़ से करें जो डिज़र्व करती है, जिसको मोहब्बत चाहिए, और जितना आप मोहब्बत देंगे उतना अच्छा है। लेकिन मोहब्बत देते वक्त अपने आप को डुबोना नहीं है, बल्कि इतनी मोहब्बत दें कि आप उसमें डूबे ना, कि आपको अगर वो चीज़ ना मिले तो आप बिल्कुल बर्बाद ना हो जाए। बहुत गहरी हो गई ये बात भाई। अच्छा, इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को सजाने के लिए कोशिश नहीं करता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। मोहम्मद सिद्दीक डार फ्रॉम नीलम वेली, ठंडा पानी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा ही है, हमारा अलमिया ही यही है, कभी सोचे ना तन्हाई में बैठ के हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, असी कियां असा अल्लाह ताला सोना सको भेजा, उसकी किबरियाई बयान करने आस्ते चरिंद परिंद तमोचन, लेकिन वो इंसानों को कियां आख्या है, महज 5 टाइम दी नमाज है, ठीक है, उसके अलावा शुक्र अदा करो, अपने आस पास के लोगों नाल प्यार करो, ठीक है, मोहब्बत बंडो, और अपना इल्म है तो वो लोगों को दियो, तो और क्या चाहिए, किसी नाल ज्यादती ना करो, किसी नाल छेड़छाड़ ना करो, दूसरे की मदद करो, खुशियां बिखेरो, एंड दैट्स इट। और कोई इतना लंबा चौड़ा फार्मूला है ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला को यही जिहड़ियां चीज़ां ना वो पसंद आनी है। तौसीफ कबूल, शो का टाइमिंग बता दें। अच्छा, शो दे टाइमिंग ये है कि सुबह 11 तो कहने का तैयारी 1 बजे तक, हर पीर और मंगल, एक बार फिर हर पीर और मंगल सुबह 11 तो कहने के 1 बजे तक होता है, और इस विच फेसबुक लाइव मोस्टली 11 तो कहने के 12 बजे तक होता है, ज़्यादातर, कभी कभार मतलब 12 तो कहने के तक भी हो जाता है, लेकिन 11 तो 12 तो सी सुन सकते हो। ताहिर अहमद पर नाल दसो, हाई बीपी वाले अफराद पासे दे अंडे तो गरेज करन। हाँ जी। हाई बीपी वाले तुसी भावें पासे दा अंडा खाओ, उस विच तुसी गुल्ली हटा के नो ना, तुसी जर्दी भावें ना खाओ ना, वो निके बच्चियां को चाहते हो, उस विच बड़ा जरूरी है। एग वाइट जो होता है ना, उसकी बड़ी अफादियत है, ठीक है। और दूसरी ये गल है कि जी अंडे की सफेदी है उस विच विटामिन्स और बड़ा मिकदार विच कैल्शियम होता है, अंदर तुसी इस्तेमाल कर सकते हो। बल्कि जिहड़े वेट लॉस करते हैं वो अंडे दी सफेदी खाते हैं। तो अगर मैं अपनी गल करा तो मुझको खुद एग वाइट ही पसंद है, येलो पार्ट में मोस्टली अवॉइड करती हैं। अच्छा, ये जेह्ड़े बीपी हाई वाले लोग हैं ना, उन्हों को भी पूरा अंडा जियां जर्दी समेत खा सकते हैं, लेकिन अगर वो मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ साथ वॉक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं, और वो कुछ कंडीशन है उस तो बाद वो जर्दी खा सकते हैं। लेकिन वो वही है ना कि तुसी अगर अपना ख्याल रखसो तां जुल के तुसी पूरा अंडा खा सकते हो। देखो ये कितनी चंगी गल है ना कि तुसी जिहड़ी जरूरी चीज़ है ना, तुसी पूरा अंडा तां खा सकते हो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हर चीज़ का अमल करते हो। अच्छा, असल दा प्रोग्राम दा टाइम थोड़ा घट है, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कि अज आधा घंटा प्रोग्राम करना सा 15 मिनट करना सा, लेकिन तुसां दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा कि मैं सोचा कि जिसको पूरा किया जुले, ठीक है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी शामिल होए हो, अपनी राय का इजहार किया, और इस टॉपिक तक मजीद गलबात कर चुके सी हुण आ गया है, तो इसो खूब गलबात हो सी। ख्याल रखो अपना, खुश रहो, जींदे रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, और 89.4 सुनते रहो।